Oh, dear students, we were discussing about structure of DNA in our last classes. Uh, we understood what are the components of DNA. We understood how the nucleic acid is actually designed by composing its monomer, that is nucleotides. We understood what are the components of nucleotides. We have discussed how nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group are attached together to form a complete nucleotide, and how the nucleotides are attached among each other to form polynucleotide chain. So today I am just going to, in this part, I am just going to show you how the two different nucleotides are actually forming phosphodiester bond between each other to form a polynucleotide chain. We had discussed in our last class also, but in this class I am just going to show you the chemical reaction, the biochemical reaction of the polymerization of nucleotides. Means each nucleotide are joined together to form a polynucleotide chain. That is how the polymer of nucleic acids are actually formed. I told you that every free nucleotide are always having 3 phosphate group, but when that nucleotide have become the part of polynucleotide chain, means what? When that nucleotide is joined with another nucleotide of the polynucleotide chain, then that nucleotide will have always 1 phosphate group. This thing we will see by this biochemical reaction, okay, how the nucleotide of polynucleotide chain have 1 phosphate group and how the free nucleotides have 3 phosphate group. This thing we have to understand because this is an confusing portion जोटा कि बहुत पिला ए पार्ट रे कंफ्यूज हो जानती किमित एटा होची बोली आउ वी विल अंडरस्टैंड हियर how the two different nucleotides are actually forming phosphodiester bond by some biochemical reactions, by some ionic variation, and this type of particular mechanism is called as a nucleophilic attack. तो ये सब जिनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोले कौन एक्सप्लेन कर एटा सब आम एंट्रांस बेसिस रे टिके डिटेल्स पढ़िबा तथापि मध्य आज जदि आम कॉन्सेप्ट को बुझुचे दैट इज एक्चुअली एंट्रांस ओरिएंटेड टॉपिक. एंट्रांस ओरिएंटेड माने कौन आम जेते टॉपिक रो कॉन्सेप्ट को जीवा जेते डीप कॉन्सेप्ट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिबा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और एंट्रांस ओरिएंटेड हला. किंतु आमे केतिकी लिमिट रहिवा दरकार प्लस 2 पई सेडा मध्ये बुझिवा दरकार. जो पार्ट रे मु टिके डिटेल्स जाउची सेडा को मध्ये मु कहूची कि नाही मु टिके एक्स्ट्रा कहूची जोडा कि तुमको एंट्रांस पई टिके हेल्पफुल हबो. ओके सो नाउ एनीवे द लास्ट क्लास रे मु बारंबार कहूतिली कि हाउ द ओपन चेन ऑफ राइबोज इज एक्चुअली फॉर्म. किमिति ओपन चेन राइबोज. दिस इज द ओपन चेन राइबोज. दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5. Okay, this is 1 2 3 4 and 5. Okay, this is the aldose sugar. एटा सो फर्स्ट ईयर रे मु पढ़ाई छि बायोमोलिक्यूल्स रे. The monosaccharides are of 2 types based on their functional group, presence of functional group, that is aldose and ketose. If aldehyde group is there, that is called as aldose. If ketone group is there, that is called as ketose. एबे सेउडा सब डिस्कशन करिया विषय नै because that is first year topic डाइवर्ट हबो.
किंतु सेटा तो फंडामेंटल टॉपिक मु लास्ट क्लास रे भी बारंबार कही आउ ए टॉपिक गुड़ाक क्लीयर हेले तुमको +2 सहित एंट्रांस मध्य बहुत हेल्पफुल हम. सो एनीवे राइबोज को आम बुझा चेष्टा करवा टिके कहूँ मु आउ थे. दिस इज क्लोज्ड चेन रिंग फॉर्म राइबोज जोटा कि मुझे टू मेक द राइबोज अनरिएक्टिव. हेले राइबोज जदि सब जदि सी हाउ द न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर केते कॉम्प्लेक्स न होइथिबो. कॉम्प्लेक्स हेले ही तो सी तार एते टिपिकल फंक्शन को मैनेज करूची जे कि बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करूची. दैट मॉलिक्यूल विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स. अदरवाइज हाउ इट माने इज देयर एनी पॉसिबिलिटी to maintain the body characteristics by such a molecule? Such molecules are very complex. The monomer itself is complex, so how the polymer will be very complex. Okay, so ये देखिले आमे कि different type of molecule मिसिला. Nitrogenous base is ribose sugar and phosphate group, phosphoric acid. ये देखिले this ribose sugar, that is pentose sugar, is in ring form. This is in open chain form. This is carbon 1, 2, 3, 4, 5 and aldehyde. This is aldehyde group, bond CHO. एटा होची CHO, bond CHO, aldehyde group. आउ ए टोटल गुडा को कार्बन रो वैलेंसी मेंटेन हिची C. एटा को मु बेसी एक्सप्लेन करनी, सो फर्स्ट ईयर रे पढ़ा हिची डिटेल्स. ओके, द केमिस्ट्री कांसेप्ट होची, दिस इज बायोकेमिस्ट्री. सो इथरे कोन होची कार्बन रो वैलेंसी 4 इज मेंटेन्ड इन एवरी 5 कार्बन एटम व्हिच इज द एक्चुअली द बैकबोन चेन ऑफ दिस मोनोसैकेराइड. तो पेंटोज मोनोसैकेराइड रो बैकबोन चेन रे 5टा कार्बन एटम अच्छी एंड मेंटेनिंग 4 वैलेंसी एंड द फर्स्ट कार्बन एटम इज ऑफ aldehyde group रो कार्बन एटम. एतिकी तो ओपन चेन स्ट्रक्चर टा हमें देखिले, किंतु जो रिंग चेन फॉर्म हेची दिस फोर्थ कार्बन एटम एंड फर्स्ट कार्बन एटम जॉइंड टुगेदर, इट जॉइंड हे जाईची रिंग फॉर्म हे जाईची सी. ओके, एंड रिंग फॉर्म हेले कोन हबो, दिस पेंटोज सुगर, दिस राइबोज सुगर विल बिकम अनरिएक्टिव. एते रिएक्टिव हबो नाही. स्टेबल हेले सिना डीएनए टा स्टेबल रहिबो. डीएनए रे जदी प्रत्येक मॉलिक्यूल रिएक्टिव हे जाउथिबे टू एवरी मॉलिक्यूल, द डीएनए विल नॉट बी स्टेबल. रिएक्टिव होची, बट दैट इज हैविंग ए सिलेक्टिव रिएक्शन, अनस्पेसिफिक रिएक्शन नहीं. ओके, दैट टू any biological reactions or biochemical reaction within the cell is specific only. Unspecific reaction होनी जदि हेला माने ताकू disorder बोली कहबा, disease बोली कहबा. That is important thing you have to remember. अर्थ बॉडी रो सेल भितरे जहाँ भी किछि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होची or as called as biochemical reactions, those are specific biochemical reaction performing some specific characteristic feature. It is important thing. But apart from all these biomolecule, DNA is most important biomolecule because DNA actually originated biomolecule, first biomolecule which give rise to all other biomolecule. DNA होची से टाइप रो बायोमोलिक्यूल जे कि सब बायोमोलिक्यूल को तैयारी करिवारे गोटे मेन रोल प्ले करूची. किमिति से आमे आगु को पढिबा सेंट्रल डोग्मा तापर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. बट डीएनए जदि सीमिति बोले डीएनए केते अनरिएक्टिव हवा कथा. एक जदि रिएक्टिव हबो बोले स्पेसिफिकली रिएक्टिव हबो. सो तो इमिति ए देखो ओपन चेन रे जदि रही थांता, इफ the pentose or ribose sugar will become open chain form in this nucleotide, what will happen? The side group of this OH will be more reactive to some unwanted reactions. So to avoid this technical problem, nature has chosen the ring structure form of this ribose but not the open chain form of ribose. मु कौन कहली बुझी पारलो. तो रिंग चेन फॉर्म हैला. बर्तमान नाइट्रोजनस बेस विषय में डिटेल्स डिस्कशन करिचे, देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस नाउ. तापरे मु जो देखैथिली कि तीनटा फॉस्फेट ग्रुप रहिबो फ्री न्यूक्लियोटाइड रे आ गोटे फॉस्फेट ग्रुप रहिबो द न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. हाउ दैट वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंड. देखो तीनटा जो फॉस्फेट ग्रुप रहुची
तार मु केमिकल स्ट्रक्चर टा देखैली आयोनिक स्ट्रक्चर केमिति अरेंजमेंट हो रहउची PO4 माइनस केमिति रहउची सी P एपटे गोटे ऑक्सीजन रहिला ऑक्सीजन फास्फोरस रो वैलेंसी केते फास्फोरस रो वैलेंसी केते 5 रहिला ऑक्सीजन रो वैलेंसी 2 रहिला तो देखो ऑक्सीजन सब डबल बॉन्ड कला एपटे दीटा बॉन्ड कला एपटे दीटा बॉन्ड कला एपटे गोटे बॉन्ड करची एंड लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करिछि ओके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करची माने ये बट इट विल बी ऑल द टाइम आयोनिक मु कहिथिली कि डीएनए रो फास्फोरिक ग्रुप रो गोटे ऑक्सीजन सब बेले आयोनिक रहिबो टू मेंटेन द न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज नेगेटिव चार्ज सेथि डीएनए टा no doubt DNA contain both acidic group and basic group but basic group is actually not maintaining ion basic group जदि ion maintain करथांदा बोले positive ion cation maintain करथांदा but the acidic group maintain ion that is anionic form so हला बर्तमान तीनटा फॉस्फेट ग्रुप दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो तीनटा फॉस्फेट ग्रुप रहइबो कारण तार फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करियार आ के नाही सेकंड न्यूक्लियोटाइड देखिबा हमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो तीनटा फॉस्फेट ग्रुप रहिला ओके तो हाउ दिस थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टुगेदर वी हैव सीन सी दिस इज फॉस्फेट 1 2 3 समस्तंगर वैलेंसी सब फॉस्फेट ग्रुप रो वैलेंसी हिची 5 हाइड्रोजन रो वैलेंसी 1 ऑक्सीजन रो वैलेंसी 2 कार्बन रो वैलेंसी 4 ओके इमिति हे कि नाइट्रोजन रो वैलेंसी केते रहबो 3 रहबो 3 तो इसो वैलेंसी तुम जानि थिबो केमिस्ट्री तो नाउ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड 1 and this is nucleotide 2 now the nucleotide 2 is free nucleotide 1 is also free but nucleotide 1 ପରେ ତା ପଛପଟେ ଆସିବ nucleotide 2 ତା ପଛପଟେ ଆସିବ nucleotide 3 ତା ପଛପଟେ ଆସିବ nucleotide 4 so nucleotide 1 ର phosphate group as it is ରହିବ ट्राइफॉस्फेट फॉर्म रे बट nucleotide 1 रो देखो थर्ड पोजीशन रे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अछि माने 3 प्राइम कोन 3 कोन एडा सब मु लास्ट क्लास रे डिस्कशन करिछि सो 3 प्राइम OH of first nucleotide will attack or react ताकू कौन कहते न्यूक्लियोफिलिक अटैक सर टी डिफाइन करंतु न्यूक्लियोफिलिक अटैक कले कौन एटा टिके अच्छी डिटेल्स जीवा एटा आमे एंट्रेंस पार्ट ऑफ व्यू किंतु आमे एति की जानो जेहेतु एठे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होची केमिति रहूची न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन होची OH माइनस रिएक्ट करूची कौन दीटा जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप सेकंड फॉस्फेट ग्रुप थर्ड फॉस्फेट ग्रुप ओके तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फेट ग्रुप पर जो ईस्टर बॉन्ड थिबो ताकू से अटैक करिवो ओके से ईस्टर बॉन्ड रे कोन हो दीटा फॉस्फेट ग्रुप को से रिलीज कर दबो गोटे फॉस्फेट ग्रुप रहिबो सो दिस इज वन ईस्टर बॉन्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड व्हिच इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए न्यूक्लियोटाइड दिस इज अनदर ईस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड तो वर्तमान फॉस्फेट मझिरे अच्छी दीपटे दीटा ईस्टर बॉन्ड रहिला ताकू कौन कहले फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इज एक्चुअली जॉइनिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड अमंग ईच अदर हला तो वर्तमान दीटा फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हे गला नाउ द 3 प्राइम OH ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग बॉन्ड together that is phosphodiester bond okay then the two nucleotides are joined together look into this diagram it is the first nucleotide this is second nucleotide this is the phosphate group of first nucleotide this is the third position of second nucleotide तो एथिरे कोन हला phosphate group pyrophosphate two phosphate group of second nucleotide is actually released हेले दीटा फॉस्फेट ग्रुप थिले ताको डाइफॉस्फेट कहबा और पाइरोफॉस्फेट PYRO मेक ए नोट लिख PYRO पाइरोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट बोली कहबा ताको सो नाउ वी हैव सीन दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिस इज वन ईस्टर बॉन्ड दिस इज अनदर ईस्टर बॉन्ड सर एक्चुअली
केतन क्वेश्चन गुडा आसीबो एक्चुअली तो ए ईस्टर बॉन्ड ता तयारी हला बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाईईस्टर एटा तो ओरिजिनली थिला आगुरु व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड काहे की कुआ गलानी बिकॉज ईस्टर बॉन्ड ता एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप रो फॉस्फेट होची सेंट्रल मॉलिक्यूल गोटे ईस्टर बॉन्ड रखिकी केबे हेले मोनोफॉस्फेट फॉर्म रे रहिबो नाही न्यूक्लियोटाइड जदि न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट फॉर्म रहिबा सी अनस्टेबल हे जो ईस्टर बॉन्ड मध्य ओके जदि रहिबो सबु बेले सी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म रे रहिबो नाउ दिस न्यूक्लियोटाइड हैज बिकम द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इमिति हे कि से चेन दा तयारी कला तो सेथि पई फॉस्फेट ग्रुप दीटी जाक ईस्टर बॉन्ड थिले ही फॉस्फेट ग्रुप स्टेबल रहिबो रिएक्टिव हबो नाही आ सी न्यूक्लियोटाइड को मध्य स्टेबल रखिबो सेथि पई फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड खाली जदि हला ए ईस्टर बॉन्ड ब्रेकेज हे बोले मध्य हबनी सेथि पई बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज the bond found is called as phosphodiester bond because both ester bond are actually providing the stability between two nucleotides सेथि पई डाईईस्टर बोली कहिले फॉस्फो मोनोईस्टर बोली कहिले नाही कारण गोटे ईस्टर बॉन्ड दीट जाक न्यूक्लियोटाइड भितर स्टेबिलिटी दोउनी बोथ ईस्टर बॉन्ड दोउची बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज एक्चुअली मीडिएटिंग बिटवीन टू ईस्टर बॉन्ड therefore it is called as phosphodiester bond present between two adjacent nucleotide in a polynucleotide chain मन रख two adjacent nucleotide माने this is one nucleotide this is second nucleotide this is third nucleotide this is fourth nucleotide the nucleotides are joined together among each other so this is called as phosphodiester bond ओके किंतु डीएनए केस रे आमे आगो को देखिबा डीएनए आर डबल स्ट्रैंडेड माने डीएनए रो जिमिति ये गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हला डीएनए रो सिमिति आ गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हबो किंतु ए दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भितरे कोन लिंक अछि सेरा आमे पढिबा आगो को तो ए दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भितरे जो न्यूक्लियोटाइड अछि टू ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड टू कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड तांको भितरे किंतु phosphodiester bond habo nahi the bond present between two opposite nucleotide not adjacent mane pakha pakhi opposite mane opposite face to face two opposite nucleotide of two opposite polynucleotide chain in a DNA सबु double stranded रहिबो माने दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहिबो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नॉट एक्जिस्टेंशियली पॉसिबल रेयरली को केस रे होची बट सेडा ऑकेजनली किछिटा गोटे पर्टिकुलर काम पे होची सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म नहले नेचुरली जदि एक्जिस्ट करिवो डीएनए ऑलवेज इन डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म व्हाई दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस so now for the timing you understood how the phosphodiester bond is formed how the nucleotide which is the part of polynucleotide chain contain one phosphate group but not three phosphate group but how the free nucleotides contain three phosphate group and how the three phosphate group are breaked and removed two phosphate group and contain one phosphate group the nucleotide is attached to adjacent nucleotide देखिले आमे बुझिले आमे एटा मध्य लास्ट क्लास रे वी हैव स्टडीड द नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू द पेंटोज सुगर is by means of a bond called N-glycosidic bond आ ए बॉन्ड विषय रे मु लास्ट क्लास रे डिस्कशन करिछि इट है नथिंग टू डिस्कस मोर इन दिस चैप्टर सो वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट एटा समस्ते ड्रॉ करि दियो रिएक्शन डा नोट्स रे दिया हिनी बट रनिंग नोट्स रे यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम सो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर so now
just look into these points I have discussed. Nitrogenous base are of mainly two types, purine and pyrimidine, and purine are guanine, adenine, and pyrimidines are thiamine, uracil, and cytosine. All these things I had discussed with you. Then come to the detailed structure of the points of structure of DNA. In 1953, Watson and Crick has proposed the double-stranded helical structure of DNA and got Nobel Prize. ये जो helical structure जोटा कि आमे आगु को पढ़िया को जाउचे, the next I will show you the helical structure. Helix means what? The spring-like helix. Helix, you know, the coiled-like structure. Say that is called as helical structure. DNA always maintain helical structure. So that is discovered by Watson and Crick in 1953. They got Nobel Prize. Each nucleotide is made up of nitrogenous base, pentose sugar, and phosphate group. We studied. Many nucleotides are linked by means of phosphodiester bond to form polynucleotide chain. We studied this thing also. Phosphodiester bond are formed between 3' OH, between OH of hydroxyl group of 3' carbon of pentose sugar of one nucleotide and phosphate group of 5' carbon atom of pentose sugar of next nucleotide. We studied. Put the star mark at a star mark there, the important point. आमे पढ़िले ए पॉइंट विषय रे कि केमिति फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होची. We studied that. Then we understood this diagram. I have discussed all these things. Then come to polynucleotide strand. Polynucleotide strand, stand nahi, strand habo. STRAND. टिके स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी. This is strand, STRAND, strand माने chain. Okay. Polynucleotide chain माने दीटा न्यूक्लियोटाइड ये अच्छी जिमिति कुह दौड़ी केमिति अच्छी देखिछ रस्सी दौड़ी किंबा व्हाटएवर जो लुगा दौड़ी गुडा देखिथिबो सब केमिति हेलिकल स्ट्रक्चर रे केमिति कॉइल हेकी थाउचंदी गोटे ऊपर गोटे तो दीटा स्ट्रांड हेकी थाए सूता गुडा को जिमिति देखिथिबो. फॉर एग्जांपल याकू ये गोटे सूताटे धरनियो आकू एमिति हेलिकल स्ट्रक्चर देखुछ एटा केमिति हेलिकल स्ट्रक्चर माने दीटा स्ट्रांड रहिला बोथ आर कॉइलिंग शेप इन स्ट्रक्चर जेटा कि गोटे ऊपर गोटे ओवरलैप होगी कॉइल्स टाइप रो रहिले बोथ वायर्स ताकू हेलिकल स्ट्रक्चर ए टाइप रो रहे डीएनए रो. सो द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ बैकबोन ऑफ सुगर फॉस्फेट. हमें देखिले ईच nucleotide have nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. किंतु जो मझिरे जो बैकबोन रोची माने जिमिति कि बैकबोन माने कोन हमर जिमिति कि बैकबोन तापर साइड रे बॉडी रो स्ट्रक्चर अछि सर नो से मझिरो जो अलाइनमेंट रोची सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन गुडा करे जो एवरी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर तो मिडिल रे फॉस्फेट सुगर इमिति कि न्यूक्लियोटाइड गुडा अछि नाइट्रोजनस बेस गुडा साइड रे रोची हला. Phosphate sugar by forming long chain and nitrogenous base are hanging in the side position. Nitrogenous base गुडा side position रे रहुची. How we will see that? See, this is one nucleotide. This is another nucleotide. This is another nucleotide. See, this is polynucleotide chain. तो इथरे कौन हला गोटे nucleotide ये होची pentose sugar. This is phosphate group. This is nitrogenous base. This is pentose sugar. This is phosphate group. This is nitrogenous base. So these nitrogenous base are hanging in the side position, and there is a phosphate sugar backbone is there. Immediately what a polynucleotide chain lombichi. Similarly, another polynucleotide chain is elongated like that, and two polynucleotide chain are antiparallel to each other. Antiparallel माने कौन जनकर 5' to 3' हेले ये हला 3' to 5' like this. This is parallel. Okay, these two pen are parallel.
Anti-parallel means like this. These are anti-parallel now. बुझा पड़ा माने गोटे चेन डे एपटे 5 प्राइम टू 3 प्राइम लंबिला आडू आउ गोटे चेन डे 5 प्राइम टू 3 प्राइम इमिज लंबी थिवो सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमिति इलोंगेट होची तो नाउ दिस मु कहिथिले आगुरु मध्ये पढैथिली कि हाउ द टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर bound together by means of phosphodiester bond. We studied that. But two opposite nucleotide of two different polynucleotide chain in DNA are bound together by means of hydrogen bond. By means of hydrogen bond. Because this is a nucleotide, this is a nucleotide. And these two nucleotides are bound together by means of hydrogen bond. But this bond is specific. माने ए bond टा जो होची एडा nitrogenous base भितर होची hydrogen bond is formed between two nitrogenous base. See, these are nitrogenous base, but phosphodiester bond is formed between sugar molecule and phosphate group. Between sugar molecule and phosphate group. See, एटा होची गोटे phosphate group, एटा होची गोटे sugar molecule. एटा phosphodiester bond हला. This is phosphate group, this is sugar molecule. एटा phosphodiester bond हला. But hydrogen bonds are formed between two nitrogenous base of two opposite nucleotides, and hydrogen bonds are weak bond, and hydrogen bond double bond भी ही परिवो, triple bond भी ही परिवो, and hydrogen bonds are specific. माने always adenine double bond हब थायमिन सहित guanine triple bond हब cytosine सहित. Okay, but phosphodiester bond किसी specific नहीं. Any nucleotide, any adjacent nucleotide will form phosphodiester bond with the next nucleotide. सेथिरे किसी specific nucleotide सहित नाइट्रोजन phosphodiester bond करियो बोली किछि माने नाही. In DNA, adenine always base pair with thymine by 2 hydrogen bond. We studied this. And guanine always base pair. Base pair माने base nitrogenous base. से pairing हो चंदी. Two opposite nucleotide have two opposite nitrogenous base at the side position and they pair together by means of hydrogen bond. So how many hydrogen bond? Always A double bond T. Adenine form 2 hydrogen bond with thymine. Guanine form 3 hydrogen bond with cytosine. तो adenine जतबेले DNA रे thymine सहित ये कला then guanine सब बोले 3 hydrogen bond form करी कि cytosine सहित attach हला. DNA always double strand helical structure सेथि पे एमिति होची, but RNA is not generally double strand, but rarely depending upon requirements it maintain double strand but not completely, and it is rarely. It is one thing. Second thing, जदि भी RNA single strand हेले मध्य बेले बेले overlap होची, बेले बेले overlap होची, तो से केस रे guanine cytosine सहित triple bond formation करिवो, that is no doubt. But in RNA there is no thymine. In place of thymine uracil is found. Therefore, adenine form 2 double bond with the uracil if the overlapping of single chain of RNA is possible. जदि गोटे single chain, for example एटा single chain दा, single polynucleotide chain, एठी overlap करि परिबो ना नै, देखो एति पोर्शन के overlap कला, अब एति overlap हेलानी, but this is single chain only. So RNA can overlap among each other. So in that case, two opposite nucleotide have two opposite nitrogenous base. In that case, what will happen? Adenine double bond thymine सहित तो हबनी, RNA रे thymine नहीं, कौन हबो? uracil हबो. और guanine as it is cytosine सहित triple bond form करि परिबो. The hydrogen bond is weak bond. Hydrogen bond is weak bond. It is simple a physical interaction, but the phosphodiester bond is a chemical bond. It is a ionic exchange होची.
outermost orbital रो excited electron share होची एठी ओके so one lose the electron one gain the electron इमिदी का chemical bond formation होची so phosphodiester bond is a chemical bond and a very strong bond it is present between two adjacent nucleotides so two polynucleotide strands are called complementary to each other सेथिन जो दीटा polynucleotide strand देखिले I have shown you एटा गोटे polynucleotide strand 5 prime to 3 prime आ गोटे polynucleotide strand सेपटे 3 prime to 5 prime तो एमिति जेते बेले हला ए दीटा जो strand रहिला DNA रो ताकू कोन कहै complementary बोले कोन सबु बेले A adenine form 2 hydrogen bond double bond with thiamine and guanine always form 3 triple bond hydrogen bond with cytosine okay सिमिति cytosine थिले triple bond guanine सिमिति thiamine थिले double bond with adenine okay एमिति हो therefore it is called as complementary माने always adenine form double bond with thiamine adenine cannot form double bond hydrogen bond with cytosine or guanine so that is most important thing the two polynucleotide strand or chain are helically coiled एमाने कोन helical coil structure maintain करथिबे between each other they can only be separated by uncoiling or negative supercoiling माने देखो DNA टा एमिदी helically coiling हेगी अछि ओके helically coiling हला तो आपको जते बेले खोलिबा ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल हेगी अछि सुपर कॉइल बोले गुडे गुडे हेगी अछि जदी आर हेलिक्स टा को हमें फिटेबा बोले कोन हबो दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज हबो एंड वी हैव टू अनकॉइल नेगेटिवली सुपर कॉइल माने जिमिति पॉजिटिवली सुपर कॉइल करी गुडे हिथिला सिंगी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करिगी खोली हबो दैट इज द वे The two polynucleotide chains are anti-parallel to each other. I have shown you anti-parallel माने कोन one is elongated from 5 prime to 3 prime another is elongated from 3 prime to 5 prime तो गोटे हला 5 prime to 3 prime for example एडा हला 5 prime to 3 prime ये हला 5 prime to 3 prime इमिजी अछि तो 5 prime to 3 prime 3 prime to 5 prime are not these anti-parallel ये anti-parallel हला ना नहीं so these are anti-parallel to each other this is the helical structure this is the helical structure look into this this is DNA helix this is a coiled structure called helical structure of DNA the diameter of this helix diameter बोले कोन जिमिति पेन रो स्प्रिंग अछि पेन रो स्प्रिंग गोटे स्प्रिंग दीटा स्प्रिंग गोटे पेन टिप टॉप पेन अछि ना नै टिप टॉप जो पेन रहउछि तारो दीटा स्प्रिंग को तमे लागी लागी रखि दे एडजेसेंट how those will be looking like the same way the DNA will be looking like तो दीटा रिंग पैरेलली जाईची तो सेम देखिला आडू तो ऊपर आडू देखले कोन गोटे सर्किल वाला देखा जीवो सो सर्किल रो डायमीटर अछि जेटा कुआ वाला देखा जीवो गोटे कुआ वाला देखा जीवो स्प्रिंग डा पेन रो स्प्रिंग को तमे साइड रे सिना देखुचो हेलिक्स कॉइल टाइप रो स्ट्रक्चर देखा जाउची बट इफ यू लुक इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन जदी अपवर्डली देखुचो बोले सेडा गोटे गोटे स्मॉल होल भाया देखा जाउची वेल लाइक स्ट्रक्चर कुआ भाया देखा जीवो तो सीमित रे तार डायमीटर अछि 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम एंड द वन टर्न और पिच माने कोन जिन बॉल क्रिकेट बॉल कोन कला एठू उठिला पडिला आउथरे उठिला दैट इज वन पिच जदी से पिच को जदी तमे जोड़ी दबो बोले कोन हबो गोटे सर्किल हे जीवो आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट जेतेबेले क्रिकेटर बॉलर जेतेबेले बॉल थ्रो करूची से कोन गोटे पिच ऊपर पड़ी जाउची मींस एठू बॉलटा गला फ्रॉम दिस पोजीशन इज फॉल ऑन टू द ग्राउंड एंड जंप तो एमिति जो गला दिस इज वन पिच इफ यू जॉइंट टू एंड जदी पिच रो दीटा एंड को जॉइंट कर देले सी सर्किल हे जिवो सिमिति एठू स्टार्ट हे कि ए पर्यंत आसिला ओके दिस इज वन पिच तार केते डिस्टेंस लेंथ केते 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम और 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर दिस इज 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम और 2.0 nanometer then
Come to this 3.1. Hello, each pitch contain on an average in generally 10 nucleotides. गोटे पिच रे 10टा न्यूक्लियोटाइड रोचे जनरली आ पिच रो डिस्टेंस होची 34 डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ ता तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 केते हबो 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम. So the distance between each nucleotide in a DNA helical structure is actually 3.4 degree nanometer. तापर हला मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप. मेजर ग्रुप माने कोन जेतेबेले हेलिक्स टा बुलुची हेलिक्स टा से गोटे कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर रहउची द टर्न व्हिच इज एक्चुअली जो टर्न टा नला ये गोटे टर्न नला ए टर्न नेलाडू विच इज लॉन्ग टर्न तुम देखि केतेबेले जो घाटी घाटी चढ़ुच कि ओह्लौच घाटी चढ़ेला टर्निंग गुड़ाक बेले बेले बहुत वाइड था लंबा था ओके आउ किसी जगह देखि घाटी घाटी जो चढ़ुच घाटी घाटी मीन्स ये कौन जो पहाड़ उपरे रास्ता देखी जाऊच तो से जगार हिली एरिया गुड़ाक जो रास्ता गुड़ाक थाए द रोड्स what is happening there तो लॉन्ग टर्न होते ताकू मेजर ग्रुप बोली कहवा केतरा जगह देखि सडन टर्न हो जाइए घाटीटा बड़ डेंजरस हो सडन टर्न हो जाऊँगी सडनली बुलिकी उपरकू जा पड़े दैट इज माइनर ग्रुप तो सेटा हेलिक्स हेलिक्स रे जो टर्न टा बहुत राउंड टर्न होती दैट इज मेजर ग्रुप एंड द इमीडिएट टर्न जोड़े सेटा हूँ कौन माइनर ग्रुप. तो दिस इज फॉस्फेट सुगर बैकबोन आम देखिले एंड टू द नाइट्रोजनस बेस which are found in the side position they are attached by means of hydrogen bonds double bond and triple bond we have seen. So this is sugar phosphate backbone actually. This is how the nucleotide of DNA polynucleotide chain of DNA is actually elongated. Okay, these are named as nitrogenous base. माने कौन नाइट्रोजेनस बेस आगा अछि कि न्यूक्लियोटाइड रे जेहेतु नाइट्रोजेनस बेस टा डिफरेंस रहउछि नल तो डीएनए रे गोटे टाइप रो ही पेंटोस सुगर रहइबो वन टाइप ऑफ दैट इज डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप ही गोटे रहिबो बट वेराइटी कोथरे हबो नाइट्रोजेनस बेस रे वेराइटी आसीबो डीएनए केस रे adenine guanine thymine cytosine. Since the nitrogenous base is different types therefore nucleotides are named as it according to nitrogenous base. न्यूक्लियोटाइड को मध्य नाइट्रोजेनस बेस अनुसार ही नेमिंग कले सिम द एट adenine guanine cytosine means these are the nitrogenous base found in this nucleotide. That is sugar phosphate ro backbone da. Okay, so this adenine double bond with thymine, guanine double bond with triple bond with cytosine, cytosine triple bond with guanine, thymine double bond with adenine. So this elongate from 5 prime to 3 prime position and this one from 3 prime to 5 prime position. Like this the two strands of DNA are anti-parallel to each other and the complementary bond formed between adenine double bond T and guanine triple bond C. We have seen this two polynucleotide chain of DNA. Then come to the diameter of double stranded DNA helix is 20 degree angstrom we have seen. The length of a complete one turn of a helix is 34 degree angstrom we have seen this. There are nearly 10 nucleotides in one turn of the DNA helix. Therefore the distance between two neighboring or adjacent nucleotide in a DNA will be 34 degree angstrom by 10 is equal to 3.4 degree angstrom. 3.4 degree angstrom is equal to 0.34 nanometer. Then come to Erwin-Chargaff's rule. It is important for 1 mark and there is a calculation also. I have given some calculative questions in the last of this chapter
एरविन चारगाप्स रूल को नहीं कि गोटे कैलकुलेशंस क्वेश्चन गुड़ाक पचार अरिथमेटिक माने मैथमेटिकल क्वेश्चंस जाक मध्य पचारि पारे we just see what is this law rule actually what is the rule a plus g is equal to t plus c means what DNA have two polynucleotide chain that is two opposite complementary strands एथिरे जहाँ भी किछि adenine अच्छी guanine अच्छी माने adenine adenosine monophosphate guanosine monophosphate nucleotide form रे अच्छी adenine तो खाली नहीं so adenine guanine cytosine thymine all these are there so एठी कौन कहूची कि adenine और guanine रो क्वांटिटी जहाँ थिबो thymine and cytosine रो ताहा रहइबो obviously adenine बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो थायमिन सहित जेतिकी adenine थिबो सेतिकी थायमिन रहइबो guanine जेतिकी थिबो cytosine मध्ये सेतिकी रहइबो because guanine always complementary with cytosine therefore in a DNA the quantity the amount of adenine and guanine is equal to the amount of cytosine and thymine that is called as Chargaff's rule any DNA if you calculate adenine और guanine मिसेले जहाँ थिबो for example adenine plus guanine is equal to 250 therefore thymine and cytosine will also be 250 हबनी के because adenine सबुळे कहा सहित complementary form करिवो thymine सहित and guanine always form complementary triple bond between cytosine so it states that in any species DNA molecules should have an equal ratio of pyrimidine that is cytosine and thymine and purine that is adenine and guanine the number of adenine molecule is equal to thymine molecule and the number why because A always double bond with T and the number of guanine molecule is always equal to cytosine molecule means what guanine always triple bond with C cytosine and this is the equation the Chargaff has analyzed the base composition of DNA from a number of different organisms एमिति से बहुत ऑर्गेनिज्म रो डीएनए को टेस्ट करछंदी सी अकॉर्डिंग टू द हेलिकल स्ट्रक्चर किए को टाइप रो टर्न नहीं थिवो कहार ए अकॉर्डिंग टू द हेलिकल फॉर्मेशन बोल देखो कॉइलिंग ऑफ हेलिक्स से अनुसार केते प्रकार डीएनए रहउची डीएनए रो कंपोजिशन एड कंपोजिशनली नहीं एडे कोन अरेंजमेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए फॉर्म माने कोन तार हेलिक्स रो कॉइलिंग को टाइप रो हेची कोटा राइट हैंडेड माने लाइक दिस कॉइलिंग विल बी फॉर्म्ड लेफ्ट हैंडेड माने लाइक दिस माने ये इमिति बुल्ला को से इमिति बुलिवो कॉइलिंग कोते प्रकार अछि तमे गोटे गोटे जिंसटा को गुडौछ जो कॉइल फॉर्म करछ फॉर एग्जांपल दिस वन ओके तो इमिति कॉइल करि पारली ताकू आउथरे खोल देली इमिति कॉइल करि परिबी उल्टा डायरेक्शन रे यस और नो तापरे इमिति भी करि परिबी कि अधा राइट हैंडेड तापर अधा लेफ्ट हैंडेड बुझला नहीं अधा पोर्शन राइट हैंडेड तापर अधा पोर्शन लेफ्ट हैंडेड इमिति मध्य कॉइल हे परिबो सो लाइक दिस द कॉइल विल बी राइट हैंडेड द कॉइल विल बी लेफ्ट हैंडेड ओनली वन टाइप ऑफ जेड डीएनए जे कि जिग जैग अरेंजमेंट हेथिबो एटा देखो एटा बारंबार कहूची this ZDNA, BDNA, CDNA actually according to coiling of a helix. Helix ता केमिति बुलिछि मु कहली एमिति एमिति राइट हैंडेड बुलिबो कोडा लेफ्ट हैंडेड बुलिबो कोडा राइट हैंडेड बुलिले मध्य तांकर नंबर ऑफ बेस पेयर अलग अलग टाइप रो थिबो सिंदी ADNA, BDNA, CDNA, DDNA all the coiling of helix are right handed and sugar phosphate linkage is normal बोले गोटे सीधा लाइन रे अच्छी किंतु ये गोटे जेड डीएनए जार कॉइलिंग डा लेफ्ट हैंडेड हिची लेफ्ट हैंडेड पैटर्न रे बुलिची एंड सुगर फॉस्फेट टा हो जिगजैग माने सुगर टा एट रहले फॉस्फेट एट रहइबो सुगर एट रहले फॉस्फेट एट रहइबो इन जिगजैग ही जेड टाइप रो देखा जाउची बट ऑल अदर डीएनए रे कोन होची सुगर फॉस्फेट बैकबोन डा पूरा स्ट्रेट अछि जेमिति कि मु देखैली डायग्राम रे आई हैव शोन यू इन डायग्राम देन बेस पेयर पर टर्न
इमे सब डिफरेंशिएटिंग फीचर जो ताको अलग अलग ना दिया हला ए डीएनए बी डीएनए all these names are given. What are the number of base pairs or nucleotides found in a turn? Here 11, 10, 9.3. 9.3 कौन सर? एटा गोटे एवरेज वैल्यू 9.3 कौन रोचे कि कौन न्यूक्लियोटाइड किंतु धरनिया गोटे लेंथ अनुसार एवरेजटा कड़ा हम टोटाल डीएनए रे न्यूक्लियोटाइड अच्छी धरने 81 कि 63 nucleotides are there 63 गोटे चेन रे आउडे 63 आउडे चेन रे तो सिमिलर देखिले 126 nucleotides are found in a DNA molecule. Now सेथिरे गोटे गोटे टर्न रे केतोटा न्यूक्लियोटाइड रहिबो हिसाब केन करबा वन टर्न केतरा टर्न अछि फॉर एग्जांपल 20 टा टर्न अछि तो टोटल न्यूक्लियोटाइड डिवाइडेड बाय 20 टर्न तो जहा कैलकुलेशन आसिला फ्रैक्शन रे आसिले मते फ्रैक्शन रे लिखा हो तो 9.3 न्यूक्लियोटाइड्स अछि एटे 8 न्यूक्लियोटाइड अछि एटे 12 न्यूक्लियोटाइड अछि ओके देन पिच ऑफ हेलिक्स एटा एटा केतेटा पेयर रहिला आ पिच रो डिस्टेंस कोन जेमिति एटा नानोमीटर सेटा डिग्री एंगस्ट्रॉम लिखा हितिला 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नानोमीटर आमे कैलकुलेशन पढिचे आगुरु तो से हिसाब रे आई हैव शोन यू डिग्री एंगस्ट्रॉम पैरामीटर इन दैट हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बट हियर आई हैव रिटन नानोमीटर ओके कंफ्यूज होवार किसी कारण नहीं दीटा जगह नानोमीटर डिग्री एंगस्ट्रॉम एनी ऑफ दिस पैरामीटर कैन बी मेंशन फॉर डीएनए लेंथ एंड स्ट्रक्चर so 2.8 3.4 3.1 this is not actually fixed এটা vary करे okay vary करे and this is 4.5 these are nothing but the length of the pitch of a helix ra pitch ra length come to packing of nucleosome complex रे कोन होची द डीएनए जोड़ा कि कॉइलिंग स्ट्रक्चर हेले एते लंबा कॉइल जे कोथरो तो बांधीबार अछि जेमिति गोटे सुताडे धरने फॉर एग्जांपल कुआ दौड़ी किबा एनी सुता बंडल मध्ये हेलिकल फक्स ये रे थाए सुता गुडा को हेलिक्स फॉर्मेशन रखिबो कि नाले कुआ दौड़ी बहुत राग अछि गोटे 500 मीटर लंबी छि कुआ दौड़ी तो ताको हमें केमिति रखिबा बंडल गुडे रखिबा सिमिति द डीएनए इज वेरी इलॉन्गेटेड so that DNA जेतला पैकिंग हबो से क्रोमोसोम फॉर्म को आसीबो तो पैकिंग करिया को हेले किछिटा गोटे प्रोटीन रो बंडल प्रोटीन रो गोटे कॉम्प्लेक्स ऊपर से गुडा हबो ताकू कहजो न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स द डीएनए हेलिक्स एग्जिस्ट इन ए हेलिकल फॉर्म देखिले हमें बिकॉज ऑफ पैकेजिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हेले जो हेलिक्स टा फॉर्म हला एबे हमें सिना स्प्रिंग मु जो कहिली पेन रो स्प्रिंग टा होची गोटे मेटल टा गोटे आयरन टा सेति पे सी मझिरे गैप रही गला बट डीएनए मॉलिक्यूल तो सिंपल मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जेतला हमें सूता एटा को हेलिक्स फॉर्म करिगिरी गुडेइबी कहा ऊपरे बोले कहा ऊपरे गुडेइबी इंडिया ए ऊपरे गुडेइबी सो दिस इज द डीएनए ये डीएनए हला किंतु डीएनए टा जो हेलिक्स फॉर्म रहिला कहा ऊपरे तो गोटे गुडेइ हला सेटा कोनडा सेटा होची हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स the protein which contain mostly basic amino acids that is histidine अधिक मात्रा थिबा जो ताको हिस्टोन प्रोटीन बोली कहउचंदी which is basic in nature not acidic or neutral यार कोन बेसिक इन नेचर काहे कि सर बेसिक प्रोटीन माने एसिडिक प्रोटीन कि न्यूट्रल प्रोटीन नने कि बेसिक प्रोटीन निया गला रिमेंबर वन थिंग डीएनए रो एवरी न्यूक्लियोटाइड रे फॉस्फेट ग्रुप अछि आ फॉस्फेट ग्रुप रे गोटे ऑक्सीजन टे आयन मेंटेन करछि नेगेटिव आयन ओके अर्थ से एसिडिक कैरेक्टर टा बेसी शो करछि डीएनए रो से न्यूक्लियोटाइड कंपेयर्ड टू नाइट्रोजनस बेस एसिडिक कैरेक्टर इज शोन मोस्टली एंड आयनिक फॉर्म रे अछि सिमिति द एमाइनो एसिड्स व्हिच आर प्रोटीन माने मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स तो प्रोटीन गुडा सिनी बेसिक थिले बेसिक प्रोटीन ऊपर गुड़े ही रहले डीएनए विल नॉट बी रिएक्टिव मच से लेस रिएक्टिव रहिबो माने डीएनए रो न्यूक्लियोटाइड रो एसिडिक जो मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन एंड प्रोटीन रो बेसिक मॉलिक्यूल से कोन हबो एसिड बेस मिसिंग न्यूट्रलाइज
रोल करेंगे ना कौन हम डीएनए विल बी मच मोर रिएक्टिव सो एत बड़ लंबा डीएनए चेन ताकू जदि गोटे ता भीतर एसिडिक कैरेक्टर बेसी अच्छी बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप रो नेगेटिव आयन जो इफ दैट डीएनए विल बी रैप्ड और गुड़ा हो जदि गोटे बेसिक प्रोटीन रो कॉम्प्लेक्स रे देन दैट डीएनए विल बी लेस रिएक्टिव एटा सब आमे करूने नेचर करिछि नेचुरल सिलेक्शन हेछि सो व्हाट आर द से हिस्टोन प्रोटीन रो कॉम्प्लेक्स टा कोन ऑक्टामर ऑक्टामर मतलब 8टा 8 मर बोले यूनिट माने 8टा यूनिट हिस्टोन रो 8टा यूनिट मिसिकी ऑक्टामरिक हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड 8टा यूनिट जे चारि प्रकार रो 8टा माने गोटे प्रकार रो 2टा लाखे अछंती से चारि प्रकार कोन 4 टाइप्स H2A H2B H3 H4 काहे वाई H बिकॉज ऑफ हिस्टोन अच्छी हेले एडा H2A एडा सब कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन मनीष अच्छी केते प्रकार अच्छी ना नहीं होमो सैपियंस lakhs crores variety of homo sapiens are there on this earth homo sapiens will गोटे हे गला कि सेमिति the histone protein are of different types H2A H2B H3 H4 into 2 चारि प्रकार हला प्रत्येक टाइप रो एवरी टाइप हैव 2 in number of histone protein therefore 8 मर माने यूनिट 8टा प्रोटीन को मिसी की गोटे हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेची and that protein complex is actually the packing particle for a DNA helix हेले गोटे याडे डीएनए गुड़े हिची this is for example octameric histone protein complex and around this the DNA helix is actually coiled now this is called as a nucleosome is nothing but the double helical portion of DNA as well as the histone protein complex together called as a nucleosome complex. The complex of DNA and octameric histone protein see the complex of DNA and octameric histone protein are called as a nucleosome complex. Each chromosome is a long chain nucleosomes माने एटा गोटे न्यूक्लियोसोम एमिति गुडे हला ओके सिमिति आउ टिके पर आउ थरे गुडे हबो डीएनए आउ गुडे रे एमिति हे कि द लॉन्ग लेंदी डीएनए जो लंबा डीएनए हेतिबो बहुत लंबा डीएनए मतलब बहुत सेल छोटो सेल देखा जाएनी न्यूक्लियस आउरी छोटो से भितरे जो डीएनए अच्छी दोज आर अगेन वेरी स्मॉल बट लेंदी एते लंबा हेतिबो एते स्मॉल माइक्रो सेल भितरे मध्ये एते लंबा डीएनए रही परुची ओके माने केते that DNA if you open सबु डीएनए को जदि लंबा कर जीव गोटे मीटर 2 मीटर हम गोटे सेल रो डीएनए जदि पछरे पछरे लंबा कर न एते लंबा अछंदी कि से भितरे केमिति रहउछंदी सब कॉम्प्लेक्स ही गुडे ही अछंदी ओके जदि एमिति मध्ये कुआ जाउची गोटे टेंटेटिव फिगर कि टोटल ह्यूमन रो सेल मल्टी सेलुलर सी जहाँ भी किसी सेल अच्छी एटा कैलकुलेशन है गोटे एवरी सेल रो डीएनए रो लेंथ को धरिकी गोटे आइडिया करा होची को ह्यूमन रे 10 करोड़ सेल थाई पारे सम ह्यूमन जार आकार जते बड़ सम ह्यूमन हैव 9 करोड़ सेल एमिति किछि गोटे टेंटेटिव फिगर कहूची कुहा जाउची कि पीपल साइंटिस्ट आर सेइंग दैट कि इफ यू कैलकुलेट इफ यू इलोंगेट जदि एवरी सेल रो डीएनए जदि पछू पछू लंबा करा हे जीवो बोले पृथ्वी पृष्ठ को गोटे मनीषर टोटल सेल रे जेतिकी सब डीएनए अच्छी जदि पछू पछ लंबे गोटे दौड़ी टाइप रो शेप कर दवा टोटल पृथ्वी को टोटल अर्थ को सी डायमीटर वाइज 6 थर गुड़े पारिबो सी 6 थर 6 टाइम्स माने 6 times total earth will be rounded by the total DNA or genome of a one human being गोटे human रो जेति टोटल DNA अच्छी से टोटल अर्थ को 6 थर गुड़े पारिबो एति लंबा ही पारिबो केते पिकुलियर और मिस्ट्रियस रहस्यमय जिंस देख एते स्मॉल मॉलिक्यूल बट एते लेंदी मॉलिक्यूल सेल भितर अच्छी आ से सेल मध्य आखि को देखा जाउनी माने
एबे मध्य अहंकार करिवो एबे मध्य कोन आमे अहंकार करिवा कि वी आर सुपीरियर क्रिएचर आमर नॉलेज अछि आमे साइंस वेली कोन पढुचे आमे एते बड़ देश दुनिया चलाउचे एबे मध्य मानव समाज कोन अहंकार करिवो एटा भाबिकी मध्य लाज लागुनी कि कोटी कोटी वर्ष तळे जेतलो भगवान लाइफ बोली कोन क्रिएट करिथिले सेबुठू ही एते कॉम्प्लिकेटेड लाइफ टाकू से डिजाइन करचंती आ केतळ से भगवान स्टाम्प बाडे कि कोना हंदी कि मु करची बोली आमे कोन छोट छोट जिनस टिके कर दे कि केते टेम्पर मरचे कि हमर नॉलेज आमे अप टू डेट आमे साइंस पढुचे हमर मॉडर्न आमे पूरा अप टू डेटेड व्हाट केते मूर्खामी आमे बंचुचे आमे रियलिटी को एक्सेप्ट जे करूनी ग्रहण करूनी प्रकृत रे नेचुरल साइंस which is created by nature is much more superior than this artificial science which is created by we small human beings आमे छोटो मनुष्य गुड़ाक छोटो जीव गुड़ाक जो माने कि छोटो छोटो साइंस क्रिएट करी आमे नेचुरल साइंस को चैलेंज करुचे केते बड़ा मूर्खामी हो जाउची जिमती छोट पिंपुटा हाथी को चैलेंज कला भाया एनीवे एटा मोर प्रवचन नहीं एटा हूँ पाठ पढ़ला आड़ को आम नेचुरल साइंस आ नेचर आ गॉड र क्रिएशन को टिके देखिके आश्चर्य हवा कथा कि जो क्रिएशन को आम मेंटेन करछे ह्यूमन लाइफ रे आमर सियाड़े केतल ध्यान ही जाऊनी ध्यान ही जाऊनी से जो क्रिएशन टा जो सेल जो डीएनए जो ह्यूमन बॉडी हो कि एनी लिविंग बॉडी हो केते कॉम्प्लिकेटेड वे रे कंस्ट्रक्ट हेची नॉट दिस डेज एबे हेनी कोटी कोटी वर्ष तळरु ही आछि किए करूची सेटा खूब पिकुलियर साइंस इमेजिन करी होने साइंस रो रहस्य केते गभीर बट दिस इज नेचुरल साइंस नॉट डिजाइन्ड बाय ह्यूमन बीइंग आमे जस्ट डिस्कवर करी टिके टिके बुझी पारले जानी पारले ओके ये जो मॉलिक्युलर बायोलॉजी विषय हम पढुचे एटा आम द्वारा कराइनी आम टिके बुझीचे बुझिले आमर साइंटिस्ट माने टिके बुझिले से माने आमको टिके बुझेले आज आम बही पढ़ुचे जिनस गुड़ाक बट रियलिटी जी गढ़ी जो भगवान से केते कॉम्प्लिकेटेड वे गढ़ी थी आज आम बुझी पारे से बड़ कथा टिके पढ़िले बुझिले जानिले एनीवे वी अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स The each chromosome is a long chain of nucleosome complex. In प्रत्येक chromosome रे 46 chromosomes अच्छी. Every chromosome have this long chain nucleosome complex. इमती प्रत्येक जगह रे nucleosome complex रा गुड़े गुड़े ही की पूरा X shape रो chromosome ना तियाई है. Okay. Then the central part or core of nucleosome consists of histone protein with DNA coiled surrounded its surface like a thread around a stick. कहले thread around a stick. इमिति गुड़े ही थी वो nucleosome complex. Within a nucleosome complex, how the DNA is actually packed with a protein किमिति ही थी वो stick around माने thread around the stick. A thread डा around the stick माने stick माने बाड़ी जिमिति गोटे बाड़ीटार एटा गोटे बाड़ीटा धरनियो आ साइड पट जिमिति आमे गुड़ेले जिमि देखा जीवो दिस इज ए न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स दिस इज डीएनए दिस इज हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सराउंडेड न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक हला ए भितर कोन अछि ऑक्टामेरिक हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जेटा कि H3 H4 H2A H2B ओके चारि प्रकार 4 type of histone proteins are there but in pairing form माने चारि प्रकार अच्छी but 8टा अच्छी ओके सो एटा होची histone protein octamer histone protein complex then this is the DNA helical chain and side रे H1 कोन H1 is not the part of octameric histone protein complex but ये साइट रे क्लैंप भलिया काम करची माने धरनियो ए दौड़े गुड़े हे गला तापर बाहर पटे गोटे क्लाम्प दे देले कारण से गुड़ा जो है पैकिंग होती से फिटनी बुझला गोटे पैकिंग टाक फिटनी बाहर पटाड़ गोटे जमी तुम देखुव सूता बंडल गुड़ा था बाहर पटे गोटे जरीटे थी सूता सूता बंडल गुड़ा न था कि सिलाई सूता बंडल गुड़ा हो गोटे कागजटा भितर से कागजटा रहीगला जो सिलिंड्रिकल सेप्र कागज तापर सूता गुड़ा होती ऊपर पटे गोटे जरीटे दिखाई कहीं सूताटा फिटिजनी सेमती ये जो H1 हिस्टोन रहिला दिस इज ऑल्सो बेसिक प्रोटीन
but it is used as a clamp like structure at the out of माने बाहर पट towards the outside of nucleosome complex. nucleosome complex रो बाहर पट ये अछि एमित्र देखो दिस इज क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम को फिटे फिटे नवा देखो खोली खोली जीवा बोले केमी देखा जीवो दिस इज डीएनए देखो दीज आर न्यूक्लियोसोम एसो न्यूक्लियोसोम बंडल हो गई आउर इन सब कॉम्प्लेक्स है कि आम एटा एनलार्ज्ड फॉर्म रे देखुचे जब तक हम डीपली पूरा विजुअलाइज करबा किमिति देखा जाउची माइक्रो लेवल रे बोले एटा एप्रो न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बा देखा जीवो तापर फिटेले देखा जीवो देखो सी दिस इज न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स એટલે गोटे वन न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स another nucleosome complex भितर तो डीएनए तो अच्छी ना लंबी ची ना तो दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए लिंकर डीएनए चेन इज दैट पोर्शन of DNA chain which is actually interlinking between two nucleosome complex हला एटा सीलर बोले कौन है हिस्टोन प्रोटीन ये सील करछि ताकू ये करिक हिस्टोन प्रोटीन this is the complete concept of structure of DNA we have studied. I hope you are understanding. If you have any doubt you can ask me, contact me and clarify your doubt soon. तमर जहाँ किसी डाउट अच्छी टॉपिक टा पढ़ा भितर ही डाउट टा क्लियर कर कारण आम आगू आगू टॉपिक पढ़ी पढ़ी जाऊे पेंडिंग डाउट को रखनी ओके यू कैन क्लारिफाई योर डाउट व्हाट एवर डाउट यू हैव तो आई होप मु आशा करुच्ची व्हाट एवर आई हैव टॉट यू नाउ इट इज क्लीयरली अंडरस्टूड टू यू जहाँ मु किछि पढ़ेली तुमको भलरे बुझा पड़थिबो एंड गो थ्रू दिस टॉपिक दिस इज लिटिल कन्फ्यूजन भलरे जाओ पढ़ मुझे पारिची भलरे पढ़ा चेष्टा करची सिंपल वे रे बट अगेन टेलिंग यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी नेक्स्ट टॉपिक विल बी डीएनए रेप्लिकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर +2 point of view and biology point of view we will discuss that topic in our next class. Thank you very much.